إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. تمام قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی اور کبریائی اس اللہ ذات واحد کے لیے لائق و زیبا ہے. بارہ گرام مجھ سے جلسہ میں بدنظمی ہو رہی ہے. آپ کی محبت، آپ کا خلوص اپنی جگہ پہ ہے، لیکن آپ لوگ اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے. ہو جائے گا. آج بتاریخ 20 اکتوبر 2024 آپ کے گاؤں مدھوبنی میں، ضلع مدھوبنی کے اس گاؤں میں مردم شمار گاؤں میں حاضری ہوئی ہے، اور جس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے وہ موضوع ہر اعتبار سے بڑا اہم اور حساس موضوع ہے. خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے میں نے قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو بھی انسان اپنے دین سے پھر جائے گا اور اس کی موت کفر کی حالت میں ہوگی تو ایسے تمام لوگوں کی ساری نیکیاں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی برباد کر دے گا اور آخرت میں بھی برباد کر دے گا. ارتداد کا معاملہ، اسلام چھوڑنے کا معاملہ صرف لڑکیوں کے ساتھ خاص نہیں ہے. بہت غور سے سنیں. ابھی آپ لوگ تقریریں سن رہے تھے، میں کچھ کام کرنے کی بتاؤں گا جس سے بہت فائدہ ہوگا. مقررین آتے ہیں جاتے ہیں، اب ہم کو بیٹھ کر کچھ کرنا ہے. میں اپنے 15-20 منٹ کی تقریر میں کیا کرنا ہے وہ بتانے کی کوشش کروں گا. اگر واقعی آپ لوگ اس بات سے دکھی ہو کہ اسلام چھوڑ کر جو لوگ جا رہے ہیں یہ تکلیف کی بات ہے، اگر اس بات سے واقعی دکھی ہو کہ ہماری ملت اور قوم کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ کر نہ جائیں، تو پھر سنجیدگی اور متانت سے اپنی کرسیوں پر بیٹھ کر عقل مندی کا ثبوت دیں اور سماج اور معاشرے میں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں. ورنہ علامہ اقبال نے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. ہماری غیرت اتنی مر چکی ہے کہ ہم کو اندازہ نہیں کہ ہم اور آپ کہاں پر ہیں. آج مسلمان بننا، مسلمان بن کر کے داڑھی ٹوپی اور کرتا پائجامہ پہن کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اسلام کے سپہ سالار اور اسلام کے محافظ ہیں، تو اسلام کی حفاظت ایسے نہیں ہوتی. اسلام کی حفاظت ایسے نہیں ہوتی. رب کائنات نے محمد رسول اللہ پر 1447 سال پہلے یہ بات کہی تھی، اے محمد اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے محمد رسول اللہ اپنے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے آپ کو پیدا کیا. آج مسلمان تعلیم کے میدان میں کہاں ہیں؟ کبھی غور کیا؟ آج مسلمان تعلیم کے میدان میں کس مقام پر فائز ہیں؟ کبھی ہم لوگوں نے غور کیا؟ بیٹھ کر خواتین کے متعلق صرف سن لینا، بیٹیوں کو گمراہ ہوتے دیکھ لینا اور اپنے کلیجے کو پیٹنا یہ مسلمان ہونے کی علامت نہیں ہے. مسلمان، آپ حیرانی ہوگی، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران اسی بنگال کی سرزمین کے بڑے بڑے انٹلیکچوئل، بڑے بڑے دانشور گمراہ ہوتے ہوئے انہی آنکھوں نے اور انہی ہاتھوں اور پیروں نے ان کو گمراہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے صرف یہ لڑکیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں؟ نہیں، مرد اور
और दीन इस्लाम से गाफिल हो रही है। मेरे दोस्तों और भाइयों और बुजुर्गों, वक्त और मौका है कि हम और आप बैठकर सोचें, गौर करें, करना क्या है। आज हमको बुरा लगता है कि किसी गैर मुस्लिम इदारे में किसी मुस्लिम खातून के नकाब को उतारा जाता है, हमारा खून खौल जाता है, हमारी और आपकी गैरत फटक उठती है, लेकिन हम बैठकर कभी ये नहीं सोचते कि अपनी किसी मुस्लिम बच्चियों के लिए कोई तालीमी दरसगाह कायम किया जाए, उन बच्चियों को फ्री में बैठाकर दीनी तालीमात की रोशनी में उनको तालीमात की जाए, उनको हदीस की रोशनी में असली उलूम से रोशनास कराया जाए। हम मुसलमान उसके लिए तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि हम और आप इलाज नहीं जानते, हम इलाज करना नहीं चाहते, हम इंजॉय करना चाहते हैं, हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, हम सोशल मीडिया पे शेयर करना चाहते हैं कि देखो हमारी ये बेटी शेर है, हमारी ये बेटी शेरनी है, देखो फला लोग हमारी बच्चों के नकाब को उतार रहे हैं। अरे बेगैरत तो इतना बेगैरत हो चुका है कि अपने बच्चियों की तालीम का इंतजाम नहीं कर सकता, तो इतना बेगैरत हो चुका है कि अपनी बच्चियों की तालीम के लिए निस्वा स्कूल नहीं खोल सकता, तो इतना बेगैरत हो चुका है कि अपनी बच्चियों की तालीम के लिए उनके लिए सिस्टम और मौके मुहैया नहीं करा पा रहा है। तुम्हारी बेगैरती बड़ी भयानक है, सोचने का मकाम है, गौर करने का मकाम है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो भी इस्लाम के अलावा किसी और मज़हब को चाहेगा, रब्बे कायनात की नजर में उस शख्स की कोई हैसियत नहीं, वो इंसान जहन्नमी है। अगर हमको वाकई फिक्र है कि इन लोगों को जहन्नम से बचाना है, अगर हमको वाकई फिक्र है कि हमारी बच्चियां गुमराही से बच पाएं, अभी शेख ऐसी बात कर रहे थे कि कोटा में जिस लड़की का वाकया उन्होंने बयान किया, कोटा की कहानी सुनाई। आज बताइए मधुबनी पैमाने पर मैं सवाल करता हूं कि मधुबनी लेवल पर कितने मुसलमानों ने मेडिकल तालीम हासिल करने वाली बच्चियों के लिए कोचिंग का सिस्टम और उसका इंतजाम किया हो। गौर करें कभी कहीं पर ऐसा कोचिंग है जहां हमारी बच्चियां कोटा ना जाकर के मधुबनी में पढ़ाई करें। हम मधुबनी छोड़ दें, पटना की बात करता हूं, पटना में कितने इदारे हैं जहां पर बैठ करके हमारी बच्चियां इस्लामी तशक्कुस को बरकरार रखते हुए मॉडर्न तालीम हासिल कर सकें। देखो वक्त का भी अल्टीमेटम आ गया। मैं शेख अब्दुल गफ्फार से पहले तकरीर करने वाला था, नाजिम साहब ने तकरीबन आधा घंटा निजामत की और मुझे वक्त मिल गया। अब मैं आता हूँ इलाज को, चिल्लाया हूँ इसलिए ताकि थोड़ा सन्नाटा हो जाए, वरना मैं चिल्लाता नहीं। तालीम के मैदान में मुसलमान, मैं अपनी पूरी बात कहकर ही खत्म होऊंगा, चाहे जितना लोग नाराज हों, लेकिन जल्दी करूंगा खत्म। तालीम के मैदान में 1947 से लेकर के 2006 तक जहां हिंदुओं को ये लगता था कि मुसलमान सब मदरसे पढ़ते हैं, वही मुसलमानों को भी लगता था कि सारे मुसलमान मदरसे पढ़ते हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, नहीं, मुसलमान तो पहली बात तालीम ही नहीं हासिल करते, और जो पढ़ते हैं उसमें सिर्फ 4% बच्चे मदरसे पढ़ते हैं। सिर्फ कितने? 4% बच्चे। मैंने अभी शुरू में आपसे कहा कि बंगाल की सरजमीन के कितने नौजवान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाकर दहरिया, कम्युनिस्ट और बददीन हो जाते हैं। उन्हीं में से एक शख्स वहां पर तकरीर करते हुए कहने लगा कि आखिर क्या बात है, हम लोग 96% स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, ये मौलाना मौलवी सिर्फ 4% मदरसों में पढ़ते हैं, लेकिन उसके बावजूद समाज और मुआशरे में इन्हीं की इज्जत होती है, इन्हीं की बात सुनी जाती है, लोग इन्हीं के पास मसाइल लेकर आते हैं, हमारे पास क्यों नहीं आते? मॉडर्न तालीम हासिल करने वाले 96%, दीनी तालीम हासिल करने वाले 4%। हम मुसलमानों को लगता है कि सारे मुसलमान कहाँ पढ़ रहे हैं? मदरसे पढ़ रहे हैं। नहीं, कल एक गांव में गया दर्स देने, वहीं सबसे हाथ उठवाया, कहा बताओ आपके गांव में कितने बच्चे मदरसे पढ़ने वाले हैं? 20-25 लोग थे, 4 लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा फारिग होने वाले बच्चे उसमें से कितने जो आलमियत करके निकले? 2 लोगों ने हाथ उठाया। मैंने कहा मॉडर्न तालीम हासिल करने वाले बच्चे कितने हैं? 5 लोगों ने हाथ उठाया। जब समाज और मुआशरा जहालत से भरा रहेगा तो फिर लड़कियां नहीं भागेंगी, लड़के गुमराह नहीं होंगे, तो क्या होगा? जहालत का लिबादा हटाना पड़ेगा। जिस रसूल को पहला हुक्म मिला इक़रा पढ़ो, उस रसूल के मानने वाले तालीम में इतने पीछे चले गए कि एससी और एसटी से पीछे चले गए, सबसे पिछड़ा तबका। आपको हैरानी होगी, 5 साल से लेकर 35 साल की उम्र के बच्चे जो कभी मदरसा या स्कूल गए ही नहीं, एससी और एसटी में 14% है, हम मुसलमानों में 17% बच्चों ने कभी स्कूल और मदरसे का मुंह नहीं देखा। जो बच्चे मॉडर्न तालीम हासिल करते हैं, सिर्फ उसमें से 2% बच्चे ग्रेजुएशन
पढ़ाई छोड़ देते हैं। ये तालीमी मेयार है। हलाल हराम शादी करनी नहीं करनी उस पर आप लोगों ने सुना। करने का काम क्या है? हम सब लोग मिलकर तालीमी दरसगाह खोलें, लड़कियों के लिए इदारे बनाएं। लड़कियों में तालीम हासिल करने का जज्बा बहुत ज़्यादा है। तालीमी इदारों को मजबूत करें। लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल और कॉलेज खोलें। ये हमको करना है। आज बड़े फख्र से लोग कहते हैं हमारी बच्ची कॉलेज में पढ़ रही है, हमारी बच्ची फलां जगह पढ़ रही, लेकिन उन बच्चियों को अपने इदारों में रख करके, अपनी निगरानी में रख करके हम और आप कभी तालीम नहीं देते। ईसाई स्कूल में पढ़ेंगी हमारी बच्चियाँ, हिंदू स्कूल में पढ़ेंगी हमारी बच्चियाँ, गैर मुस्लिम स्कूल में पढ़ेंगी हमारी बच्चियाँ, और बड़े फख्र से ये बेगैरत मुसलमान कहेगा कि हमारी बच्चियाँ पढ़ रही हैं। हालांकि पैसे की कमी हमारे पास नहीं है। वली रहमानी ने ऐसी मिसाल दे दी, सिर्फ एक रुपया जमा करके 5 करोड़ रुपया जमा कर लिया और तालीम का शानदार इदारा खड़ा कर दिया है कलकत्ता के अंदर। तो मुसलमानों, हम और आप इतने ज्यादा बेहिस हो गए कि हम और आप 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया जमा करके अपने इलाके में स्कूल नहीं खड़ा कर सकते। कौम और समाज और माशरे के लिए इखलास पैदा करें। हालात हाजरा पर बेदार रहें। हमारे इर्द गिर्द क्या चल रहा है इस पर बेदार रहें। जहां भी तालीमी दरसगाहें हैं उसको सपोर्ट करें। चिराग जला नहीं सकते तो बुझाने का काम ना करें। मदारिस जो है गांव में उसको मजबूत करें, खुसूसन मकातिब को, मकतब की तालीम को मजबूत करें। इल्म और उलमा की कद्र करें। और हर घर की जिम्मेदारी है कि जैसे फैमिली डॉक्टर रखते हैं ऐसे फैमिली उलमा रखें अपने साथ, जो आपकी हर मोड़ पर रहनुमाई करें। तालीम हासिल करना ये इलाही और नबवी मिशन है। इस मिशन को कमजोर ना होने दें, ये हम सब की जिम्मेदारी है। खवातीन के दरमियान उम्मत की माओ उम्मुल मोमिनीन की सीरत के दुरूस कराए जाएं, उनके मुताबिक उनको बयान किया जाए। बैतुल माल कायम करें हर इलाके में, और उस बैतुल माल की जिम्मेदारी है कि बेवा, यतीम, मिस्कीन का ख्याल करें। तालीमी सपोर्ट जरूरतमंदों को करें। सेहत और दीगर मसाइल में उनका सपोर्ट करें। बैतुल माल का निज़ाम कायम करें। फतावा और दीनी रहनुमाई को आम करें। लोगों के सवालात का जवाब लोगों को फौरन मिले। मसाजिद और कम्युनिटी सेंटर का क़याम करें। इन मसाजिद और मकातिब को मजबूत करें। मस्जिदों को सिर्फ नमाज के लिए ना बनाएं, बल्कि कौम और महल्ले की तरक्की के लिए सारे काम करने की कोशिश करें जो हलाल हों। और एक बात, आखिरी बात कहकर खत्म करूंगा कि गैर मुस्लिमों से शादियां क्यों लोग कर रहे हैं। इल्हाद या इर्तिदाद की 2 बड़ी वजह है। नंबर 1 शादी और नंबर 2 दौलत। नंबर 1 शादी, नंबर 2 दौलत। इसकी वजह क्या है? नंबर 1 शादी में ताखीर करना, वक्त पर शादी ना करना, जबरी जहेज की लानत मुसल्लत कर देना। इतनी जहेज चाहिए, इतना हम लेंगे, आखिर में वो फंसा करके वो इंसान कहीं और चला जाता है। वालिदैन और खानदान का औलाद की तरबियत में गैर जिम्मेदाराना रवैया। हम लोग अपनी बच्चियों के साथ सही ताल्लुक नहीं रखते। मोबाइल फोन का बिला जरूरत इस्तेमाल और सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा लगाव। इसी तरह से मर्द और जन का इख्तिलात। इसी तरह से को एजुकेशन, जहां मर्द और औरत दोनों हों, जहां लड़के और लड़की दोनों हों, इस तरह के माहौल में तालीम देना। जॉब के लिए कंपनियों में जाना। तालीम याफ्ता बच्चियों के लिए हम सब की जिम्मेदारी है कि जॉब का इंतजाम करें। उनके लिए करने के काम क्या है? लड़कियों के लिए मेडिकल, डॉक्टर और नर्स का कोर्स उनको कराएं, आलिमा कोर्स कराएं, टीचिंग कोर्स कराएं, लेडीज टेलरिंग कोर्स कराएं, मेहंदी का कोर्स कराएं, क्लॉथ एम्ब्रॉयडरी कोर्स कराएं, ग्राफिक डिजाइनिंग और ऑनलाइन सर्विसेज का कोर्स कराएं, और खाना बनाने के कोर्स कराएं। ये वो काम है कि पढ़ी लिखी लड़कियां अपने घरों में बैठ करके समाज और माशरे को तरक्की की राह पर ला सकती हैं। बोलने की बहुत बातें हैं, करने की बातें कम हैं। हम और आप जिम्मेदारी लें और यहाँ से इस बात को सोच करके उठें कि अपनी शख्सियत को, अपनी ज़ात को, अपने घर को इंशाअल्लाह इस तबाही से बचाने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग अहद करें। रब से दुआ मौला हम तमाम मुसलमानों को इन तमाम बातों को, जितनी बातें बयान की गई हैं, उन पर मिलजुल करके अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह, हम बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन इतनी सी कोशिश कर सकते हैं कि अपने घर को तबाही से बचा लें, अपने आप को तबाही से बचा लें। रब्बुल आलमीन इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।